वेलकम टू मास जेकब लाइव। मैं हूं मास जेकब और आप देख रहे हैं पीट हेग्सेथ रीड्स फिक्शनल बाइबल वर्स ट्रंप प्रिडिक्टेड ईरान वॉर इन 1987। तो जीजो भी रिसेंटली पीट हेग्सेथ अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने पेंटागन में दुआ करवाते हुए एक बाइबल वर्स पढ़ी, पर अफसोस वो आयत नहीं बल्कि पल्प फिक्शन नामी हॉलीवुड मूवी का पूरा स्क्रिप्ट था। आप जरा ये क्लिप देखें। You read the Bible, Greg? Yes. What a beautiful sight every month. Why would they be offended by Jesus? Well, there's this passage I got memorized. I'm not a theologian, but I did stay at a Holiday Inn Express last night. Ezekiel 25:17. So the prayer is Caesar 25:17, and it reads, and pray with me, please. The path of the downed aviator. Cosplay drunk breath Hegseth's holy war rhetoric is back at it again at the Pentagon prayer service. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. How dare people like Pete Hegseth invoke the power of God? Blessed is he who, in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper. Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper. And the finder of lost children. And the finder of lost children. War criminals. How dare war criminals invoke God's name? And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to capture and destroy my brother. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. In attempting to divide and put fear into the hearts of the world population. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. And you will know my call sign is Sandy 1 when I lay my vengeance upon thee. Threatening nuclear holocaust, killing thousands of people, 150 school children, and committing and instigating and executing tyranny against American citizens. How dare they? And I dare you, I double dare you. Yes, you did. Yes, you did. अब अगर आपने नोट किया हो तो पीट ने शुरू में ही कहा था कि आई एम नॉट अ थियोलॉजियन, यानी कि मुझे इल्म इलाहियात के बारे में कुछ पता नहीं है। और जब इसने दुआ करना शुरू की तो हिस्कियल नबी की किताब चैप्टर 25 वर्स 17 को कोट करने के बजाय इसने हिस्कियल नबी का नाम लेने के बजाय सीसार 25:17 कहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग खुदा के कलाम में ना सिर्फ बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि खुदा के कलाम की किताब का नाम तक लेना पसंद नहीं करते। सीसार एक मिलिट्री कोड है जिसका मतलब कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू है। अब यही वजह है कि ट्रंप ने अपना हल्फ उठाते हुए बाइबल पर हाथ ही नहीं रखा था। जैसे कि बाकी सभी अमेरिका के सदर जितने भी आए हैं सब बाइबल पर हाथ रखकर ओथ लिया करते हैं, पर ट्रंप ने इस बार बाइबल के ऊपर हाथ बिल्कुल नहीं रखा। आप जरा ये क्लिप ने देखा, ये लोग अपने मकासद पूरे करने के लिए खुदा के कलाम का बेजा इस्तेमाल करते हैं और इसमें बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि खुदा के कलाम में बढ़ाने या घटाने के बारे में क्या सजा लिखी हुई है, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि ईरान के साथ ये जंग, अमेरिका कोई खुदा के लिए ये जंग नहीं लड़ रहा है जिसे होली वॉर कहा जा रहा है, बल्कि इसका मकसद ईरान के तेल पर कब्जा करना है। आप जरा ये 1987 का क्लिप देखें। We're going to have a war, and it's going to start in the Middle East. Why couldn't we go in and take over some of their oil, which is along the sea? How would you do that? Would you send in the Marines? Would you take a chance in a war? Let them have Iran. You take their oil.
That's what Well, how? How? I mean, do we want a war? What do you mean go we in, take their oil? You go in. You're How gonna have do a we war, go Barbara. in? You're going to have a war by being weak. Okay, how do we go in? What do we do? Excuse me. Yeah. You're going to have a war, and it's going to start in the Middle East. What if the Soviet Union said, you do this to Iran, we're going to come in? I don't believe they'd do it. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it, and get back your losses, because this country has lost plenty because of Iran. तो आपने देखा कि 1987 में ही ट्रंप जब सदर भी नहीं बना था, उस वक्त से ये कह रहा है कि ईरान के साथ जंग होगी ईरान के साथ, और बदले में जब ईरान अटैक करेगा तो उसके तेल पर कब्जा करना है। अजीजों, ये स्क्रिप्ट है जो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है, जिस पर इस वक्त काम किया जा रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अब अमेरिका के सदर के साथ या अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बाद ये जंग और बढ़ने वाली है। देयर इज अ रीजन जो ट्रंप ने कहा था, आई एम नॉट क्रिश्चियन। Out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. There is a reason जो ट्रंप बार बार खुद को यीशु मसीह से कंपेयर कर रहा है, क्योंकि जैसे यीशु मसीह के बारे में यहूदियों ने फैसला किया था कि एक आदमी के मरने से पूरी कौम हलाक होने से बचाई जाए, तो ऐसे ही ट्रंप के लिए स्क्रिप्ट राइटर ने सेम यही रोल लिखा है। और मजे की बात आपको बताऊं, मजे की बात यह है कि ट्रंप पाकिस्तान आ रहा है। जी हां, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद जिसके नाम में ही इस्लाम आता है। मेरी रूह कह रही है कि कुछ भी हो जाए, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। नाउ और लेटर समथिंग बिग इज कमिंग। आप जरा ये क्लिप देखें। Would you ever go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. अब ट्रंप ने कहा है, I might go। अगर डील साइन होनी होगी तो ट्रंप वो डील साइन करने के लिए पाकिस्तान आएगा। अब आई डोंट नो कि पाकिस्तान ट्रंप आता है या नहीं आता, बट कुछ अच्छा नहीं लग रहा। समथिंग इज रॉन्ग। बाकी खुदा बेहतर जानता है। खुदा करे कि सब अच्छे से हो जाए, खुदा करे कि ईरान और अमेरिका की डील हो जाए और ये जंग बंद हो जाए, क्योंकि अगर ये जंग ज्यादा लंबी हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होती रही, इसी तरह से खुलती रही, तो जाहिर सी बात है कि तेल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी और महंगाई और बढ़ जाएगी। अब खुदा के कलाम में लिखा है, तू उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मुबादा वो तुझको तंबी करे और तू झूठा ठहरे। तो पेंटागन में ये दुआ बनाई गई है, पेंटागन के लिए ये दुआ डिजाइन की गई है, जिसमें हिजकिय्याह नबी की किताब चैप्टर 25 वर्स 17 की आयत का इस्तेमाल किया गया है, पर इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, जो कि गुनाह है। और खुदा के कलाम में लिखा है, अगर कोई खुदा के कलाम में बढ़ाएगा तो जो आफात इस किताब में लिखी हुई हैं, खुदा वो सभी आफात उस पर लाएगा। और अगर कोई खुदा के कलाम में से कम करेगा या घटाएगा तो खुदा उसका नाम किताबे हयात में से, जिंदगी की किताब में से मिटा देगा। मतलब खुदा के नजदीक खुदा के कलाम में बढ़ाना या घटाना बेहुरमती है। अब ट्रंप और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन यीशु मसीह का जलाल लेकर ट्रंप को ऐसे ही नहीं दे रही है, क्योंकि ये सब के सब यीशु मसीह का जलाल ट्रंप को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर ने ऐसा ही स्क्रिप्ट लिखा है। बेशक ये बेइल्जाम ठहरने वाले नहीं हैं और इनका इंसाफ जल्द होगा। जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, आदमी जो बोता है वही वो काटेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जंग अमेरिका कोई खुदा के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि इनके अपने मकासद इसके पीछे छुपे हुए हैं। इसलिए किसी की भी साइड लेने से पहले खुदा के कलाम में पढ़ें, खुदा के कलाम से पूछें, क्योंकि हम जिसका साथ देते हैं हम उसके गुनाहों में उसके साथ बराबर के शरीक होते हैं। ऐसा ना हो कि उनकी आफात आप पर और आपके खानदान पर आ जाएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में एक और राज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।